Bismillahirrahmanirrahim. Good morning, all of you. Assalamu alaikum. I hope that all of you are safe and healthy. Welcome back to the physics online class. Today's summary Zoom online class, we will explain, show that the vibration of mass attached to a spring or SHM, and prove that the time period of mass spring system, which is equal to 2 pi under root m by k. So kindly open the page number 7 of your textbook, and in this lecture we will explain the vibration of mass attached to a spring or SHM. सो हमने ऑलरेडी ऑनलाइन क्लासेस में कंप्लीट से एक्सप्लेन किया है, कंप्लीट डिटेल हमने कर लिया कि हमने किस तरीके से हमें इसको प्रूव करना है। तो हम थोड़ा सा एक दोबारा रिवाइज एक रिकैपिचुलेशन दोबारा हम इसको टच देते हैं और उसी में हमारे पास क्वेश्चन है, शो दैट द वाइब्रेशन ऑफ मास अटैच्ड टू स्प्रिंग. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू write the heading of the mass spring system, and then consider a block of mass m attached to one end of the elastic spring which can move freely on a frictionless horizontal surface as shown in the figure. ठीक है, तो ये इसका स्टेटमेंट है कि हमारे पास एक डायग्राम है, एक बॉडी ऑफ मास m है, उसको हम क्या करते हैं, उसी को हमने स्प्रिंग के साथ अटैच किया है और इसको फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे हमने रख दिया है. वन एंड ऑफ द स्प्रिंग इज अटैच्ड टू अ फिक्स्ड सपोर्ट एंड द अदर एंड इज अटैच्ड टू अ ब्लॉक ऑफ मास m. सेकेंडली, जब हम इसको डिस्प्लेस करते हैं, व्हेन द ब्लॉक ऑफ मास m इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द मीन पोजीशन then and released it, then the restoring force pulls the block towards its mean position. And for an ideal position, for an ideal spring system, it obeys the Hooke's law, when where the statement of the Hooke's law is restoring force is directly proportional to displacement and is directed towards the mean position. So mathematically it can be written is then अब इस तरह एक्सटर्नल फोर्स से डायरेक्ट भी कह सकते हैं और रिस्टोरिंग फोर्स से भी आप कह सकते हैं, क्योंकि जब हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे तो इसमें एक्सटेंशन प्रोड्यूस होगी और ये एक्सटेंशन इस रिस्टोरिंग एक्सटर्नल फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इसकी जो डायरेक्शन है टुवर्ड्स द मीन पोजीशन. सो मैथमेटिकली इट कैन बी रिटन एज एफ एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू के एक्स, वेयर ई एक्स एफ ई एक्स रिप्रेजेंट द एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक ऑफ मास m अटैच्ड टू एन इलास्टिक स्प्रिंग, and is k is a constant of proportionality and is known as a spring constant or stiffness of the spring, which shows the nature of the spring, strongness or smoothness of the spring. So by the removing of the external force, the block of mass m comes to its mean position under the action of the restoring force, and this restoring force is equal to the magnitude of the applied force but opposite in direction. So both are equal in magnitude but opposite in direction. And as we know that the external force is equal to kx, so putting this value in above equation, and the restoring force is equal to minus kx. So the restoring force produces according to the Newton's second law of motion. Then whenever a force is applied on a body of mass m, it will produce acceleration, and this acceleration is directly proportional to the force and inversely proportional to the mass of the body. And mathematically the statement of the Newton's law can be written as F is equal to ma. So comparing equation 1 and 2 we get ma is equal to, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी, m is equal to minus kx, and the symbol is minus m is equal to minus kx. Now we make a as a subject, then for the subject of for making the subject a we divide both side of the equation. So dividing both side of the equation, m by m, तो इधर m कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल, as the ma is equal to minus k by m is equal to x. So k by m is equal to constant, as we know that then the during motion, as we know that the spring constant is also constant, mass of the body is also universal constant. So k and m doesn't change during oscillation of mass attached to a spring, so therefore they are regarded as a constant. K by m is equal to constant, they are considered as a constant. So a is equal to constant by m x, and as we know that is equal to और constant जब हम प्रोपोर्शनलिटी में कन्वर्ट करते हैं तो हम ये प्रोपोर्शनलिटी साइन, ये दोनों जो है ये प्रोपोर्शनलिटी साइन में कन्वर्ट हो जाते हैं और हमारे पास ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस है. एंड दिस इक्वेशन रिलेशन इज यूज्ड फॉर द SHM. So hence proved that motion of mass attached to a spring is simple harmonic motion. So ये हमारे पास ये क्वेश्चन था. हमने क्या करना है, हमने इसमें सिर्फ हुक्स लॉ और न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को लिखना है. क्या लिखना है, हुक्स लॉ और न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन. देखिए आपके पास इस तरह ये फिगर में आप सिर्फ एक हुक्स लॉ को याद करें,
और दूसरा जो है ये। अब दोनों इक्वेशन को क्या करें, कंपेयर करें, और ये आपके पास देखिए सिर्फ इसमें 2 स्टेप है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट restoring force according to Hooke's law, which is equal to -6, and the next equation which is used for the Newton's second law of motion. So whenever a force is applied on a body of mass m, क्योंकि हमने स्प्रिंग कांस्टेंट लिया, स्प्रिंग मास स्प्रिंग सिस्टम लिया है, तो आपको ऑलरेडी पता है कि मास स्प्रिंग सिस्टम में हम क्या लेते हैं, हुक्स लॉ लेते हैं कि जब हम किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो जितना एक्सटेंशन होगा उतना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो इसका हमारे पास मैथमेटिकल इक्वेशन ये आता है। और जब हम किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो उस बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है, और उसके लिए फिर हमारे पास न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, ग्रेड 9 में हमने डिस्कस किया था, F = ma। सो लेफ्ट हैंड साइड and left hand sides are equal, so comparing equation 1 and 2 we get m is equal to -kx. So dividing both sides by m, k by m, as we know that spring constant and m both are constant during the oscillation of mass attached to a spring, therefore both k by m are considered as a constant. So therefore a is equal to constant, so the equation becomes, a relation becomes a direct proportional to -x, and this is the basic definition of SHM. So hence prove that the motion of vibrations of mass attached to a spring are SHM. क्लियर है। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था, आपने इसी क्वेश्चन को याद करना है कि इसमें मैंने एक मेन रिस्टोरिंग फोर्स का लिखना है, हुक्स लॉ का लिखना है, और दूसरा सेकंड लॉ का लिखना है। तो हुक्स लॉ और न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन दोनों को मैंने कंपेयर करना है। कंपेयर करेंगे तो आपके पास इक्वेशन आएगा, और लास्ट में लिखेंगे बस हैंस प्रूव्ड। तो ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड क्वेश्चन जो है, प्रूव दैट t = 2π√m/k। इसमें डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन ये है, द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय व्हाट, टी। सो द SI यूनिट ऑफ टाइम पीरियड। ये तो बेसिक डेफिनेशन है, क्लियर है। लेकिन हम इसलिए लिखते हैं जब आप किसी टर्म्स को प्रूफ करना चाहते हैं, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिफाइन दिस टर्म्स, जस्ट लाइक टाइम पीरियड है तो पीरियड को डिफाइन करें, फ्रीक्वेंसी है तो फ्रीक्वेंसी को डिफाइन करें, जस्ट इन वन लाइन, clear. So the time required to complete one vibration is called time period and it is represented by what, t, and the SI unit of time period is second. इसी तरह अगर फ्रीक्वेंसी का आ जाए, सो आप फ्रीक्वेंसी को डिफाइन करें, द नंबर ऑफ वाइब्रेशन एक्सिक्यूटेड बाय अ बॉडी इन 1 सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय f एंड इट्स SI यूनिट इज हर्ट्स। सो इस तरीके से आप इसको, फिर इसके बाद आप इसका मैथमेटिकल प्रूफ शुरू करें, क्लियर है। अब यहाँ पे हमने इसको प्रूफ करना है, t = 2π√m/k। यहाँ पे जब हम इसको प्रूफ करते हैं तो हमारे पास इसका सिंपल, मैंने आपको बता दिया कि हमारे पास 2 इक्वेशन है, कितने हैं, 2 है। 2 क्या है इसमें, हमारे पास एक एक्सेलरेशन की इक्वेशन है बाय बेसिक डेफिनेशन ऑफ SHM, a = -k/m, a = देखिए यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिखा है कि देखिए हमारे पास 2 बेसिक इक्वेशन है, एक बेसिक SHM की है और एक मास स्प्रिंग सिस्टम की है। दोनों इक्वेशन जब हम लिखेंगे और इन दोनों इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे तो हमारे पास ये टाइम पीरियड का फार्मूला आ जाएगा, बिल्कुल ईजी है। अब क्योंकि ये रिलेशन है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेक फ्रॉम दिस रिलेशन कन्वर्ट्स इनटू इक्वेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इस रिलेशन को हमने इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, और जब इक्वेशन में हम कन्वर्ट करेंगे तो इज इक्वल टू और कांस्टेंट पुट करेंगे। अब यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो हमारे पास 2/t² के बराबर है, इट मीन्स 4π² / t², और उसको उन्होंने ओमेगा का नाम दिया। ओमेगा मीन्स कांस्टेंट दिया है, और ये ओमेगा एक्चुअली एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, मैंने स्टार्ट में आपको बता दिया कि हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को इंडिविजुअली हम डिफाइन नहीं कर सकते, इसको हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हुए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सो जब एक बॉडी इसी तरह सर्कल में रिवॉल्व होती है तो जितना ये एंगल बना रहे हैं इसको हम क्या कहते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब जितना एंगल ये बन रहे हैं दिस इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। देखिए इतना बन गया ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, अब इतना। सो इसी तरह अब ये डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, ये क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम ये ईच एंड एवरी जगह पे क्या है, कांस्टेंट है। ईच एंड एवरी टाइम के बाद क्या है, कांस्टेंट, बिकॉज यूनिफॉर्म में क्या होता है, कब इक्वल डिस्प्लेसमेंट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। सो इसी वजह से हमने इसको कांस्टेंट का नाम दिया है, और ये कांस्टेंट उन्होंने ओमेगा स्क्वायर का नाम, ओमेगा स्क्वायर। अच्छा, अब ये ओमेगा स्क्वायर हमने क्लास में भी कंप्लीटली आप लोग के कोर्स से रिलेटेड नहीं है, लेकिन ये ओमेगा स्क्वायर मैंने क्लास में ऑलरेडी प्रूफ किया हुआ है, ठीक है, कि ओमेगा स्क्वायर एक्चुअली कहाँ से आता है, लेकिन आप लोगों ने प्रूफ कभी भी नहीं करना, आप लोग डायरेक्ट लिखे कि दिस कांस्टेंट इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एंड विच
इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी, सो 2 पाई बाई 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर। अब ये प्रूफ जो है ये ऑलरेडी हमने वहाँ पे किया हुआ है, इसी वजह से थीटा बाई टी। अब ये थीटा 2 बाई टी किस तरह आ गया, देखिए थीटा बाई टी तो मैंने आपको बता दिया। अब ये थीटा बाई टी, थीटा जो है एंगल है। अब एंगल हमारे पास 2 टाइप्स, एंगल हम डिग्री में मेजर करते हैं अभी तक, लेकिन इसकी जो ऐसा यूनिट है हमारे पास जो सिस्टम इंटरनेशनल में एंगल की यूनिट है वो रेडियन है। क्या है? रेडियन है। तो यहाँ पे अगर आप कंप्लीट रिवॉल्यूशन की बात करते हैं तो एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में 360 डिग्री होती है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, तो स्टैंडर्ड यूनिट के लिए हम रेडियन यूज़ करते हैं और वो हमारे पास 2 पाई के बराबर है। कितने के बराबर है? 2 पाई रेडियन के बराबर होता है। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है वो 2 पाई रेडियन के बराबर है। कितने के बराबर है? थीटा हमारे पास 2 पाई रेडियन के बराबर है। अच्छा, अब एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन जितने टाइम में कंप्लीट करता है उसको हमने टाइम पीरियड का नाम दिया था, तो इसी वजह से ये टी बिकम्स इक्वल टू कैपिटल टी। सो 2 पाई, क्योंकि ऊपर स्क्वायर है सो यहाँ पे हम स्क्वायर लेंगे, 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई स्क्वायर। तो एक सिंपल एक टच मैंने आपको दे दिया है, लेकिन इससे कंप्लीट एक डिराइवेशन है किस तरीके से आते हैं वो हमने ऑलरेडी क्लास में पढ़ गया है। सो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2, 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर और ये के बाई एम। सो इस तरीके से जब आप इसको कंपेयर करेंगे, ये देखिए कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2, तो आपके पास ये देखिए ये कांस्टेंट ओमेगा स्क्वायर आ गया और ये के बाई एम। अब यहाँ पे उन्होंने डायरेक्ट ओमेगा की वैल्यू लिखी है, मैंने तो डायरेक्ट वहाँ पे कन्वर्ट किया है, तो ओमेगा के आप लास्ट में वैल्यू लिखें। तो ये देखिए एक्स और एक्स कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, ये माइनस माइनस कैंसिल, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन को जब आप कंपेयर करेंगे देखिए लेफ्ट हैंड साइड, तो ये माइनस माइनस कैंसिल, एक्स एक्स आपके पास है ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा देखिए यहाँ पे जस्ट ओमेगा के बाई एम। अब ओमेगा की वैल्यू आप पुट करें, लास्ट में भी पुट कर सकते हैं और स्टार्ट में भी पुट कर सकते हैं, तो के बाई एम। अब के बाई एम टी जो ओमेगा जो है वो आपके पास टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम बाई के है। इधर से आपने ये वैल्यू यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू यहाँ से आप इसको निकालें, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी का क्लियर है, टी इज इक्वल 2 पाई बाई, क्योंकि स्क्वायर को कैंसिल किया है तो ओमेगा इज इक्वल 2 पाई बाई टी। तो 2 पाई बाई टी इधर के, तो ये इसको उधर किधर जाएंगे, ये इसको आपके पास डायरेक्ट आप इधर पुट कर सकते हैं। देखिए 2 पाई बाई टी इज इक्वल टू के बाई एम अंडर रूट। अब आप टी को एज ए सब्जेक्ट बनाएं, तो इसको देखिए टी को जब मैं सब्जेक्ट बना देता हूँ तो टी इज इक्वल टू, इसको उधर लेके जाएं और ये सारा ये कंप्लीट टर्म जो है ये इज इक्वल टू को इस साइड पे लेके लाएं और इस टी को उधर लेके जाएं। तो जब हम उधर लेके जाएंगे तो आपके पास 2 पाई, अभी जब कंप्लीट टर्म्स को उधर लेके जाते हैं तो इसका रिवर्स हो जाता है, के बाई सॉरी एम बाई के एंड दिस इज द रिक्वायर्ड प्रूफ हो जाएगा। क्लियर है? तो एक तरीका, तो ये इस तरीके से आप इसको आसानी से प्रूव कर सकते हैं। इंशाल्लाह इफ़ यू एनी क्वेश्चन तो इंशाल्लाह फेस टू फेस क्लास में हम दोबारा इसको डिस्कस करेंगे। किसी भी पॉइंट पे कोई डिस्कशन हो तो फिर इंशाल्लाह आप इसको नोट करें और नेक्स्ट कल जब आप लोग फेस टू फेस क्लास में आएंगे तो इंशाल्लाह हम A to Z पे दोबारा डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।